Hello everyone, welcome to StudyTech. In this video, we are going to see how to solve the continuity. Class 12th Maths Chapter 5. Before going to this video, please make sure you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Our today's topic is continuity. Class 12th Maths Chapter 5. First question is, if the function defined by fx equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1, x square plus 1 if x is less than 1, a continuous function. आपको चेक करना है कि continuous function है at x equal to 1 पे, तो लिखोगे at x equal to 1. तो सबसे पहली बात क्या करोगे आप यहाँ पे LHL लिखोगे. LHL means left hand limits. Left hand limits. Limit x tends to 1 minus, that is less than 1. Put the value of fx which is less than 1. X is less than 1, x square plus 1. Write down the value of fx. Limit x tends to 1 minus fx is x square plus 1. Put the value of x equal to 1. 1 का square plus 1 that equal to 1 plus 1 that equal to 2. Okay, comes on topic. Next, RHL. Limit x tends to 1 plus fx equal to limit x tends to 1 plus x is greater than 1, then fx equal to x plus 1. Write down x के बदले में 1 plus 1 that equal to 2. Therefore LHL equal to RHL. Therefore LHL equal to RHL. Therefore fx is continuous. Continuous at x equal to 1. Okay, this is the first question. Comes in the second question. What is the second question? fx x की पावर 10 minus 1 और x की पावर x square. If x is less than equal to 1 और इसमें if x is greater than 1. आपको चेक करना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. तो सेम एज इट इज आ जाओ. यहाँ पे हम लेंगे फिर से LHL at x equal to 1 LHL. Limit x tends to 1 minus fx. Again write down limit x tends to 1 minus. What is the value of fx when x is less than 1? X is less than 1, then fx is x की power 10 minus 1. Write down 1 की power 10 minus 1 that equal to 1 minus 1 that equal to 0. RHL limit x tends to 1 plus fx. Limit x tends to 1 plus fx is x square. Fx is x square. Put the value of x equal to 1. 1 का square equals 1. Therefore LHL does not equal to RHL. Function is discontinuous at this. Therefore LHL does not equal to RHL. Not continuous. Not continuous at x equal to 1. Therefore function is discontinuous at x equal to 1. Comes on the next question.
14th क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3, 4, 5 if 0 less than equal to x less than 1, if 1 less than x less than 3, if x 3 is less than equal to 3 less than equal to x less than 10. Whether the function is continuous or not. यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए 2 पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे 1 है और 3 है, तो 2 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप चेक करो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लिमिट LHL ले लो, दैट फॉर LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx when value of x is less than 1, then fx is 3, that equal to 3. RHL limit x tends to 1 plus fx, therefore limit x tends to 1 plus and fx when x is greater than 1, that is 4, equal to 4, therefore LHL does not equal to RHL, therefore f is not continuous, not continuous at x equal to 1. ओके, 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, अब हम चेक करेंगे सर 3 पे। at x equal to 3, limit x tends to 3 minus fx, that equal to limit x tends to 3 minus x is less than 3, then fx is 4, केवल वैल्यू डालना, आपको याद रखना है वैल्यू क्या डालना है, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। लिमिट x tends to 3 plus fx when x is more than 3, then fx is 5. Put the value of x equal to 5. Therefore 4 does not equal to 5, therefore LHL does not equal to RHL, and function is discontinuous. F is discontinuous at x equal to 3. This is the answer. Okay, write down. Then comes next question. Question number 15. 2x 0 and 4x when x is less than 0, 0, 1, and x is greater than 1. ओके, कितना क्वांटिटी चेक करना है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू 2x इफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा दिया हुआ सिग्नम फंक्शन में कहता है इसको क्वांटिटी चेक करना। यहाँ पे फिर अगेन 2 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। 2 पॉइंट पे कौन कौन से आपका 0 और 1 पे। तो सबसे पहली बात आप 0 पे करो, एट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx
तो x की वैल्यू जब 0 से कम हो तो f(x) की वैल्यू 2x है, तो राइट डाउन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज 2x, राइट डाउन 2 into 0 इक्वल टू 0. RHL limit x tends to 0 plus f(x) limit x tends to 0 plus f(x) when greater than x is greater than 0, then f(x) equal to 0, write down 0. Therefore LHL equal to RHL or f(s) continuous at x equal to 0. ठीक है. अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे at x equal to 1. At x equal to 1. At x equal to 1. LHL limit x tends to 1 माइनस f(x). f(x) की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? f(x) की वैल्यू यहाँ से देखना है कि x लेस देन 1 है, f(x) की वैल्यू 0 है, therefore write down 0. RHL limit x tends to 1 plus f(x) limit x tends to 1 plus, and what is the value of f(x) when x is greater than 1? 4x. Write down 4 into 1 that equal to 4. तो देखा 0 does not equal to 4, therefore LHL does not equal to RHL. Therefore f(s) does continuous at x equal to 1. Okay. Comes on next question. This is the 15th question. Comes on 16th question. -2 when x is less than -1, 2x if x is less than -1, 1, and 2 if x is greater than 1. तो चेक करना आपको फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. तो कॉन्टिन्यूस दो पॉइंट में यहाँ पे भी चेक होगा. एक पहला पॉइंट होगा आपका -1, दूसरा पॉइंट 1. तो ले लो at x equal to -1. LHL limit x tends to -1 minus f(x). f(x) की वैल्यू जब हमारा -1 से छोटा होगा that is -2. तो राइट डाउन लिमिट x is less than -1, तो -2 that is -2. RHL हो गया. RHL आ जाओ. RHL limit x tends to 1 plus f(x) limit x tends to 1 plus, then 1 plus है, f(x) की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1 minus 1 plus, then f(x) is 2x. 2 into -1 that equal to -2. तो आपकी LHL equal to RHL हो गया. Therefore LHL equal to RHL. और RHL की इक्वल है तो क्या होगा? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1. ठीक है. अब हम करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे चेक. तो हमारा 1 पे चेक होगा. तो f(x) की वैल्यू हमारा चेंज होगा यहाँ पे. f(x) की वैल्यू 1 होगा हमारा. 1 माइनस में 1 से मोड लेस देन के लिए f(x) वैल्यू 2x होगा.
एंड 2x 2 इंटू 1 दैट इक्वल टू 2। और यहाँ पे होगा 1 से प्लस के लिए, 1 से मोर देन 1 के लिए 2 होगा प्लस के लिए 2। यहाँ पे भी LHL इक्वल टू RHL है, A for LHL इक्वल टू RHL, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। A for function is continuous at x equal to 1. Comes on next question. Question number 17. Find the value of a and b so that the function defined by fx equal to ax plus 3 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. तो फंक्शन दिया हुआ है आपको fx equal to ax plus 1 and second bx plus 3 if x is less than equal to 3, if x is greater than 3। कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इनकी वैल्यू निकालनी है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, तो 3 पे ले लो जहाँ पे कॉन्टिन्यूस बोल रहे हो, तो एट x इक्वल टू 3 LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, देन fx इज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, 3 से लेस देन के लिए ax प्लस b, ax प्लस 1, write down a into 3 plus 1 equal to 3a plus 1। RHL limit x 3 plus fx, write down limit x tends to 3 plus fx is bx plus 3, write down b into 3 plus 3, तो 3b plus 3। अब कह रहे हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3 पे। रिकॉर्ड द क्वेश्चन, EDQ fx is continuous at x equal to 3, therefore LHL equal to RHL, 3a plus 1 equal to 3b plus 3, तो 3a minus 3b इक्वल टू 2, ये हमारा रिलेशन होगा। अब ऐसे कर सकते हो a इक्वल टू 2 प्लस 3b अपॉन 3, a और b में रिलेशन निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ b वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ b, मतलब जो a की वैल्यू होगा उसके और या b की वैल्यू निकाल सकते हो, इसलिए इसमें a और b का रिलेशन। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पे। टू 2020 का क्वेश्चन है हमारा। एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ f where f is defined by fx equal to 25, कुछ फिफ्थ क्वेश्चन है बुक का ही है। fx equal to sin x minus cos x minus 1 if x is not equal to 0, और यहाँ पे if x equal to 0, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हमें चेक करना है आपको कि क्वांटिटी का, तो एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज sin x माइनस cos x, दैट इक्वल टू sin 0 minus cos 0, that equal to 0 minus 1 equal to minus 1। comes on a RHL
RHL is limit x tends to 0 plus fx is 0 plus fx is -1, therefore -1. Therefore LHL equal to RHL, therefore function is continuous at x equal to 0. Comes on 26th question. नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन है, ये आपका CBSE में भी पूछ चुका है. इसमें क्या था, fx गिवन है, fx इक्वल टू k cos थीटा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x और 3 if x does not equal to pi by 2 and if x equal to pi by 2. If the function is continuous at x equal to pi by 2, pi by 2 पे फंक्शन continuous है, then find the value of k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो आ जाओ LHL पहले ले लो at x equal to pi by 2. LHL ले लो, LHL लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, तो fx की वैल्यू यदि माइनस होगा डज नॉट इक्वल टू के लिए यही है, तो दोनों के लिए आएगा क्या होगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. यहाँ पे करो क्या, लेट पुट कर दो, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h एज x टेंस टू पाई बाई 2, h टेंस टू क्या होगा 0. therefore लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h. तो यहाँ पर लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 minus theta is sin theta, therefore sin h and मल्टीप्लाई कर दो उसको पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्या होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 k साइन, यहाँ पे h 2h था तो 2 को इधर कर लो और h यहाँ पे दो. अब जानते हो क्या होता है हमारा k बाई 2 और साइन h बाई h लिमिट में होगा तो 1 हो जाएगा, दैट इज क्या होगा हमारा k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू k बाई 2. ओके, अब आ जाओ RHL में, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस fx दैट इक्वल टू दिया था 3. RHL तो लेना ही नहीं था इसमें, RHL लोगे तो RHL में भी यही होगा, चलो ले लो ऑफ x की वैल्यू सेम होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और fx की वैल्यू होगी कितना यहाँ पे k cos x पाई माइनस 2x. दोनों LHL और RHL दोनों के लिए यही वैल्यू होगा. क्यों होगा ऐसे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0, लेस देन और मोर देन, दोनों के लिए यही वैल्यू होगा. तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और यहाँ पे k के बदले में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे पुट से फिर सेम एज इट इज यहाँ से ले लो, तो क्या करोगे एज पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h एज x टेंस टू पाई बाई 2 h टेंस टू 0. तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू k पाई बाई 2 प्लस h दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन पाई माइनस 2 पाई इंटू पाई पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन इधर ले लो माइनस माइनस के और यहाँ पे माइनस 2 इंटू साइन h बाई h, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो k बाई 2 और ये हो जाएगा 1 दैट इक्वल टू क्या होगा k बाई 2. ये दोनों सेम है. अब आ जाओ दोनों सेम होने के बाद यदि आपका दोनों सेम नहीं होता तो कुछ और होता है हमारा आंसर. अब आ जाओ
आपका फंक्शन जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज एफ एक्स एस, ए टी क्यू ले लो, ए टी क्यू, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x equal to pi by 2. Therefore, RHL equal to RHL equal to f pi by 2. That equal to k by 2 equal to 3. That equal to k equal to 6. अब चाहो तो RHL नहीं भी दिखा सकते हो, बट RHL यदि 1 मार्कर में नहीं है तो RHL भी दिखा देना, ताकि आपका आंसर्स कभी कभी ऐसा हो कि LHL से को जो सॉल्व करके k की वैल्यू कुछ और आ रहा है और RHL को सॉल्व करके कुछ और आ रहा है, तो हमारा आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए LHL और RHL दोनों को दिखाना है। कभी कभार ऐसा होता है दोनों इक्वल नहीं आता, ऑलवेज वैसे सेम ही आ जाता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। करते हैं हम एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 28। क्या द फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू k x plus 1 cos x if x is less than equal to pi and if x is greater than pi at x equal to pi। कह रहा है कि फंक्शन इज हमारा फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू kx प्लस 1 if x is less than pi by 2 less than equal to pi by 2 and fx equal to cos x if x is greater than pi by 2। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है when function is continuous at x equal to pi पे। तो फिर से दोबारा LHL ले लो। LHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस लेस देन पाई के लिए क्या होगा आपका k प्लस के एक्स प्लस 1। तो डाल दो k पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई माइनस है, पाई यहाँ पे क्या होगा k पाई प्लस 1। आगे चला जाओ, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, यहाँ पे cos x है fx की वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई, तो एज पुट कर लेना यहाँ पे, पुट x इक्वल टू पाई प्लस h एज x टेंड्स टू पाई, तो h टेंड्स टू क्या होगा 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 180 plus theta belongs to third quadrant unchanged, that is cos h, वैल्यू डाल दो माइनस cos h 0 that equal to -1। आप कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन EDQ f is continuous at x equal to pi पे, therefore LHL equal to RHL, तो k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, k पाई इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 अपॉन पाई। दिस इज द आंसर। k की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -2 अपॉन पाई। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।